بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ذرات حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثيب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخترب المرء ونغسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يذل الرجل أن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى 3 أو 4 فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه صحيح البخاري. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. بیش بہا درود و سلام نازل ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جس کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں شیطان کی انسانی دشمنی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیان کیا گیا تھا کہ شیطان کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے، کیسے شیطان انسان کو بہکاتا ہے، سیدھے راستے سے انسان کس طریقے سے ایک انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور سب سے پہلے شیطانی وسوسے کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا اور آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انسان کو گمراہ کرنے کے شیطانی حربے، شیطانی ہتھ کنڈے، شیطانی ہتھیار کیا ہیں. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ شیطان انسان کا ازلی، ابدی اور تاریخی دشمن ہے. سب سے پہلے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اسی وقت سے شیطان نے حسد، بغض، تکبر کیا اور آدم علیہ السلام سے دشمنی کا اعلان کیا، اللہ کی نافرمانی کیا اور تا قیامت ملعون قرار دیا گیا. یاد رکھیے، شیطان نے جب دشمنی کا یہ اعلان کیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ انسان آدم علیہ السلام کے ذریعے اسے ملعون قرار دیا گیا، اللہ کی رحمت سے وہ پھٹکار دیا گیا اور تا قیامت وہ ملعون ہو گیا اور اس کو جہنم میں جانا ہے. تو اس نے یہ بھی اللہ سے وعدہ کیا، چیلنج کیا کہ میں جب تک قیامت نہیں آئے گی تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور تیرے بندوں کو سیدھی راہ سے بھٹکاتے رہوں گا، ان کے ہر راستے پر بیٹھوں گا، تیری جو سیدھی راہ ہے راستے پر بیٹھوں گا، چاہے کوئی مسلمان ہو، کافر ہو، چاہے کوئی فرمانبرداری کرنے والا ہو، چاہے جو نافرمانی کرنے والا ہو، چاہے جو سیدھی راہ پر ہو یا چاہے وہ نیک کام پر ہو، چاہے وہ بد کے کام پر ہو، ہر ایک کو کے اوپر وہ راستے پر بیٹھا ہوا ہے. اور شیطان اعمال کو مزین کرتا ہے، شیطان
लोगों को रास्ते से रोकता है, अल्लाह के रास्ते से, और बुरे रास्ते पर ले जाता है। मेरे दोस्त और भाइयों, मैंने पिछले खुतबे जुमा में बयान किया था कि शैतान का जो सबसे बड़ा हथकंडा और हथियार और सबसे बड़ा जो हरबा है वह है वसवसा। वसवसा दिल में कैसे आता है? मैंने बयान किया कि इंसान और जिन्नों में से होता है। शैतान हमारे जैसे हमारा खून जिस्म में दौड़ता है ना, तो शैतान हमारे जिस्म में ऐसे दौड़ता है। मैंने इसके ऊपर भी आपके सामने बयान किया मेरे दोस्त और भाइयों। अब चलते हैं, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि वक्त पर मौजू और खुतबा मुकम्मल करना है। तो सबसे पहला जो हरबा था वो था वसवसा। वसवसे के जरिए, बद ख्यालात के जरिए, बुरे ख्यालात के जरिए एक शैतान इंसान को किस अंदाज में गुमराह करता है, मैंने इसे पिछले खुतबे जुमा में आप हजरत ने बयान किया था। दूसरा जो हरबा है, जो अब यहां से मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, वो है राह हक और राह नजात पर शैतान का पहरा। यानी सीधी राह पर और जो नजात पाने वाला जो रास्ता है, जो हिदायत का जो रास्ता है, उस पर पहरा। शैतान की बुराइयों में से ये भी है कि राह हक और राह नजात जो जन्नत तक पहुंचाने वाले हैं, उनमें घात लगाकर शैतान ठीक उस तरह बैठता है जिस तरह शाह राह पर राहजन बैठते हैं। राहजन क्या, कौन किसे कहते हैं राहजन? राहजन है जो लुटेरे होते हैं, जो राहगीरों को लूटने वाले होते हैं, एक नजर लगाकर, नजर जमा कर बैठ जाते हैं कि कोई आए, चोर डाकू जो उचक्के होते हैं, ये राहजन कहा जाता है। वो किस तरीके से हमला करते हैं ताकि उनका माल हटा दिया जाए, ताकि उन्हें नुकसान पहुंचा दिया जाए। तो ऐसे ही शैतान जो है ना, अल्लाह के जो सीधे रास्ते हैं, अल्लाह का सीधा रास्ता है, उन रास्तों के एक एक जगह बैठा हुआ, एक एक जगह बैठा है, ताकि जैसे ही अल्लाह के बंदे सीधे रास्ते पर आ जाए, जो भी रास्ता उस रास्ते पर चले, तो मैं क्या करूं, उनको फौरन उचक लूं, उनको सीधे रास्ते से जो राह नजात है, चाहे मर्द हो या औरत या बच्चे हो या बड़े हो, हर एक को शैतान क्या करता है, उस रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। हमारी सोच को बदलता है, हमारे अंदर ऐसी ख्यालत पैदा करता है, हमारे अंदर ऐसी सूरत पैदा करता है, और हमारे सामने ऐसे बुरे अमाल को खुसरत और मुज़र बना के पेश करता है कि इंसान अल्लाह की सीधी राह से भटक जाए और वो बुराइयों पर आमादा हो जाए और सही रास्ते से भटक कर वो गुमराह हो जाए। मेरे दोस्त और भाइयों, और ऐसे नहीं बल्कि अल्लाह से चैलेंज किया, क्या कहा? देखिए सूरह आराफ की आप आयतें उठाइए, 16 और 17 आयत नंबर, उसके अंदर शैतान ने ये अल्लाह से कहा, क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मैं उनके लिए आपकी सीधी राह पर, शैतान कह रहा है अल्लाह से, मैं उनके लिए, तेरे बंदों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से। कहां से हमला करूंगा? उनके आगे से, उनके पीछे से, और उनके दाहिनी जानिब से, और उनके बाएं जानिब से, और उनके बाएं जानिब से हमला करूंगा। और कहता है अल्लाह ताला से, अल्लाह को ये भी जान ले कि उनमें से अक्सर तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि जो भी तेरे बंदे होंगे, तेरे पैरोकार होंगे, मैं उन्हें तेरे साथ जहन्नम से भर दूंगा, और मेरे जो नेकूकार बंदे, फरमादार बंदे होंगे, जो मोमिन होंगे, वो तेरी बातों में नहीं आएंगे, वो सीधे राह पर रहेंगे। लेकिन अक्सर जो होंगे, जो कहा है वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ये शैतान ने जो बात कही, देखिए उसने कहा कि अक्सर जो तेरे बंदे में होंगे वो तेरे शुक्रगुजार बंदे नहीं होंगे, तो उन्हें जो पाएगा तो वो तो नाशुक्रे होंगे। उसने ये ऐलान किया। तो अल्लाह ने कहा जा तुझे मैंने मोहलत दी, और अल्लाह ने इख्तियार दे दिया, अल्लाह ने ताकत दे दी। क्यों? आजमाने के लिए। ये तो आजमाइश, जिंदगी जो आजमाइश है ना, याद रखिए मेरे दोस्त और भाइयों, ये इम्तिहान गाह की जिंदगी है। यहाँ पर हमें अगर जन्नत पाना है, याद रखिए मेरे दोस्त और भाइयों, हम एक बड़ी कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। कामरानी हमें चाहिए, कामयाबी चाहिए, हमें कोई बड़ा ओहदा, हमें कोई हर चीज चाहिए दुनिया के अंदर, तो हमें मुश्किलात से हमें सामना करना पड़ता है, आजमाइश से हमें गुजरना पड़ता है। बहुत सारे मराहिल, कठिन मराहिल हमारे सामने आते हैं, उन मराहिल को पार करना पड़ता है। तो याद रखिए, जो दुनिया की जो जिंदगी है, जो हमारे 60-70 साल जो जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर बहुत सारे आजमाइश आने वाले हैं। और याद रखिए, और आजमाइश मोमिनों के ऊपर आएंगे। शैतान ने वादा किया, अल्लाह से चैलेंज किया, और वो तैयार हो गया, अल्लाह ने उसे इख्तियार भी दे दिए। मेरे दोस्त और भाइयों, इंसान जो भी रास्ता इख्तियार करता है, तो शैतान को उस पर घात लगाए हुए आप लोग पाएंगे। जहां पर जो भी इंसान, मिसाल के तौर पे अगर वो फरमाबरदारी के लिए निकले तो उससे बात रखने, मना करने, दुश्वारी पैदा करने के लिए तैयार हो जाता है। कि जब बंदा सीधे रास्ते पर निकला, नमाज के लिए आ रहा है, उसका इरादा होता है बंदे का
کہ میں नेकूकार बन जाऊं, अल्लाह की सही इबादत करूं, सही दीन पर आ जाऊं, तहकीक करूं, कुरान और सुन्नत की तालीमात को मैं जानूं कि सही तालीमात क्या है कुरान और सुन्नत की, तो शैतान वहां क्या करेगा, उसकी दुश्वारियां पैदा करेगा, उसके लिए सुस्ती और काहिली उसके लिए क्या करेगा, पैदा करेगा, उसके सामने लेकर आएगा, उसके सामने दुनिया के मराहिल लेकर आएगा, उसके सामने बहुत सारी दुनिया की मफाद लेकर आएगा, तो इंसान क्या हो जाएगा, वहां से रुक जाएगा नहीं करने का। और ऐसे ही मेरे दोस्त और भाइयों, और अगर एक वही इंसान नाफरमानी के लिए निकले, यानी अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए, गुनाह करने के लिए, तो शैतान उसे अपने कंधे पर उठाता है, फिर उठाकर उसे अपने साथ ले जाएगा, उसकी खिदमत गुजारी भी करेगा वो, और इयानत व मदद के लिए हम वक्त मौजूद रहेगा, और उसके लिए बुराई के काम क्या करेगा, आसान करेगा। लेकिन नेकी के काम, फर्मदारी काम क्या करेगा, मुश्किलात पैदा करेगा। लेकिन जहां वो बुराई का काम करना चाहता है, याद रखिए, अब याद रखिए मेरे दोस्त और भाइयों, और ये बात सच, नौजवान यहाँ आए हैं गिने चुने हमारे, और बहुत सारे दूसरे भी मेरे अहबाब हैं, थोड़ा सा हमारी जिंदगी पर गौर करें। जब भी हमें नेक काम करना होता है तो हमारे अंदर सुस्ती और काहिली आ जाती है, और ये शैतान तरफ से वसवसा होता है, शैतान हमारे लिए मुश्किल करता है। और जब भी नाफरमानी, गुनाह हमारे सामने होता है, वहां हमारे लिए आसानी हो जाती है, और हमारे लिए मदद भी की जाती है गुनाह के कामों के अंदर। तो शैतान हमारी इआनत और मदद करता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ये थोड़ा सा गौर कीजिए, हम जिंदगी जो मराहिल गुजारे हैं, खुद मैं अपने आप को और आप अपने आप को देखिए कि हम जहां कहीं भी हम चाहते हैं कि मैं 1 घंटा कुछ ऐसा कुरान पढ़ूं, कोई ना कोई ऐसा काम लेकर आएगा या कोई ऐसी रुकावट पैदा करेगा कि हम वो काम कर नहीं पाएंगे, या ये चाहेंगे भाई इरादा होता है बहुत ज्यादा करने का, बहुत कम जल्दी करके जल्दी चले जाएंगे, कोई ना कोई बहाना आ जाता है, या सर में दर्द होना शुरू हो गया, या ऐसी कोई चीज हो जाती है कि दिल में वसवसा पैदा होता है, सुस्ती और काहिली आती है, काम वगैरह याद आ जाते हैं। लेकिन वही उसके अगर जिद में देखे, अगर उसकी उलट में देखे कि जब हम अगर अल्लाह की नाफरमानी करना चाहते हैं और बुराई का काम करना चाहते हैं, तो हमारे सामने रास्ते खुल जाते हैं तरह तरह के। कोई भी काम लीजिए, मैंने मिसाल देकर बताया, आप चाहे मामलात में हो, चाहे इबादत में हो, चाहे किसी भी मामले में क्यों ना हो, आपके सामने जो भी अच्छे काम होंगे, अल्लाह की इसमें फरमादारी होगी, शैतान आपकी दुश्वारियां पैदा करेगा, कोई ना कोई तरीके से वो तुम्हारे सामने रुकावट पैदा करेगा। और बुरे कामों में, मिसाल के तौर पर शादी ब्याह करना है, कोई भी चीज लीजिए, बुराइयों के लिए हमारे रास्ते खुले हुए, लड़की देने तैयार नहीं जब तक के सामने वाला खुराफा बिदात ना करे, या ऐसे से मामले आ जाते हैं, इंसान मजबूरन करना पड़ता है, और नेक काम करने के लिए होता। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्त और भाइयों, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम नेक काम नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिए, इसके साथ साथ ये बात हमें याद रखना चाहिए कि हम जब नेक काम का इरादा करते हैं तो अल्लाह की मदद हमें मांगना है, और सिर्फ अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल भरोसा करते हुए, इखलास के साथ दुआ करते हुए करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका काम इत्मीनान के साथ नेक काम हो जाएगा। और जहां बुराई से रुकना चाहेंगे, शैतान वहां भी आके आपको उभारेगा, तब भी आपको अल्लाह की मदद करना। कौन सी दुआ पढ़ना है? जन्नती खजाने में से खजाना है, याद हो गया आपको, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका मफहूम और तर्जुमा जो मफहूम के साथ बताऊं आपको कि नहीं है नेकी की कोई ताकत, और नहीं है नेकी करने की कोई ताकत, और गुनाह से बचने की नहीं हिम्मत मगर अल्लाह की तौफीक से। यानी नेकी की जो ताकत है करने की, या गुनाह से बचने की जो हिम्मत है, वो अल्लाह की तौफीक से। तो ये हमें पढ़ना चाहिए मेरे दोस्त और भाइयों। चलिए मैं आपके सामने एक हदीस बयान करता हूं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के नाम एक बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है, समझाया है, और बहुत ही अच्छे उस्लूब के साथ समझाया है। सैयदना सबरा अबी फाकिहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इन्ना शैतान आदल इब्ने आदम बिअतरुक़िही, कि शैतान इब्ने आदम के तमाम रास्तों पर बैठता है, चाहे इस्लाम का रास्ता हो, जिहाद का रास्ता हो, मतलब इस इंसान जो चाहता है कि इस्लाम कबूल करूं, जिहाद पर निकलो, हिजरत करने के लिए निकलो, कोई नेक काम करने के लिए निकलो, कोई भी नेक काम होता है, जो भी रास्ता होता है, क्योंकि नेक काम के रास्ते बहुत सारे होते हैं, हम सब जानते हैं। नमाज के लिए आना एक अलग रास्ता है, जिहाद का अलग रास्ता है, तरीका अलग, हर एक तरीका अलग है ना, इबादतों का हर एक तरीका अलग होता है। तो जितने रास्ते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया तमाम रास्तों पर बैठता है। फ़क़ाल लहू बितरीक़िल इस्लाम, कोई ऐसा इंसान होता है जो चाहता है कि इस्लाम में शामिल हो जाऊं, कोई एक नया इंसान है, वो चाहता है उसके सामने कैसी चीजें पेश करता, देखिए शैतान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़क़ाल तुस्लिमु व तज़रू दीनका, अरे तू क्या चाहता है, तू इस्लाम कबूल करे और वो तज़रू दीनका, वो दीन आबाई का, वो आबाई का,
تو अपने बाप का, अपने दादाओं का या अपने खानदान का जो दीन है वो दीन तो छोड़ना चाहता है, और तू इस्लाम के लिए, इस्लाम में कोई खास बात नहीं है, और तू कैसे छोड़ेगा दिन, जबकि तेरे बाप दादा कहीं वक्त से क्या तेरे बाप दादा गुमराह थे, क्या तेरे बाप दादा का दिन गलत था, इस तरीके से क्या करे, गुमराह करेगा, दिमाग में बातें लेकर आएगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाते फासा हो, तो वो इंसान शैतान की बात नहीं सुनता है, बल्कि शैतान की नाफरमानी करता है, शैतान को धुतकार देता है, अस्लमा फास्लमा, उसके बाद इस्लाम कबूल करता है। तो ये मिसाल अल्लाह की देखिए, आप देखिए, जब उसे इनकार करे, शैतान की नाफरमानी करे, तो इसमें अल्लाह की मदद आ रही है मेरे दोस्त और भाइयों। ऐसी एक आगे और फरमा दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सुम्मा क़ालहु बितरीक़िल हिजरा, एक इंसान का इरादा होता है, वो तैयारी करता है कि मैं हिजरत करूं। देखिए आप, हिजरत का मुकम्मल इरादा करता है। हम ऐसे जगह हैं जहां पर कुफ्फार लोग रहते हैं, हम अल्लाह की इबादत सही कर नहीं पा रहे हैं, कुफ्फार की तरफ से हमें तकलीफें पहुंच रही हैं, हम चाहते हैं यहां से जगह छोड़ दें। सहाबा किराम की मिसाल दीजिए, या उसके बाद भी जो मराहिल आए हैं, हम चाहते हैं कि हिजरत करके मुसलमानों की बस्ती में जाकर रहे, जहां पर हम दीन की मदद भी करें, दीन के ऊपर हम अपनी जिंदगी गुजारे। तो याद रखिए, शैतान वहां पर भी आता है और कहता है फक़ाल तुहाजिरू, तुम हिजरत कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो तदऊ अर्ज़त व समाता, तुम कैसे हो, तुम अपना वतन जो कि तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा अजीज होना चाहिए, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी जगह, ये तुम्हारी जगह तुम छोड़कर जा रहे हो, कितनी बुरी बात है। लेकिन फाशा हो, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तब भी वो शैतान नाफरमानी करता है और हजर, उसके बाद वो क्या करता है, हिजरत कर देता है मेरे दोस्त और भाइयों। उसके बाद आगे को और हदीस में बयान फरमाते हैं, सुम्मा क़ाल बितरीक़िल जिहाद, एक इंसान निकलता है जिहाद के लिए, जिहाद की तैयारी करता है। आप देखिए यहां शैतान कैसे दिखाता है, शैतान ये कहता है कि तुजाहिदु फहुवा जहदु नफ्सी वल माल, ए आदमी तू कैसा है, तू अपने जान और अपने माल के जरिए जिहाद करना चाहता है। अगर तू शहीद होगा, अगर तू कत्ल किए जाए जंग के अंदर, तो फिर क्या होगा मालूम है, तुम कहल मरातू, तेरी जो बीवी है उस बीवी का निकाह किसी और से किया जाएगा, वो तो तक़सीमुल माल, और तेरा जो माल है लोग उसे आपस में तकसीम कर लेंगे, कहीं कोई और ले जाएगा तेरा जो माल कमाया हुआ है, तेरी बीवी किसी और के हो जाएगी, उसका निकाह किसी और से किया जाएगा। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्त और भाइयों, यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फासाउ, तब भी वो इंसान शैतान की नाफरमानी करता है, फजाहद और जिहाद करता है। और उसके बाद याद रखिए मेरे दोस्त और भाइयों, आप फरमाते हैं अगर कोई इंसान अल्लाह के ऊपर हक ये है, अगर कोई इंसान अल्लाह के राह में शहीद हो जाता है तो उस बंदे का हक अल्लाह पर बनता है, बंदे का हक अल्लाह पर बनता है कि अल्लाह तरफ से जन्नत दाखिल कर दे। और अगर कोई रास्ते में निकला हुआ है हिजरत करते हुए अपने सवारी पर, और उस सवारी की वजह से वो हलाक हो जाता है, तब भी अल्लाह के ऊपर उस बंदे का हक ये है कि अल्लाह जन्नत, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर दे। और ऐसी आगे फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर वो डूब कर मर जाए, गर्क हो जाए, तब भी उस बंदे का हक अल्लाह पर है कि अल्लाह तरफ से जन्नत में दाखिल कर दे मेरे दोस्त और भाइयों। और ये रिवायत जो अभी आपके सामने बयान की गई है सुनन नसई की रिवायत है, जिसे अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है मेरे दोस्त और भाइयों। आपने समझा इस हदीस के अंदर शैतान कैसे बहका रहा है। नमाज के लिए भी हम आते हैं, दिल में सुस्ती कायदी होती है, अभी अजान के लिए 5 मिनट है, कुछ काम कर ले। नौजवानों का हाल ऐसा है, हालांकि वक्त हमारे पास हो, चाहे मैं हो चाहे आप हो, हम अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखिए और हम अपनी जिंदगी के उन मराहल को याद कीजिए कि जब भी हम नेक काम करने की इरादा रखते थे, उस वक्त शैतान, उस वक्त हमारे दिल में क्या ख्याल आते थे। सुस्ती है, इंसान जाग रहा, अभी टाइम बाकी है, इंसान सोचता है, हालांकि इरादा होता है कुछ लोगों का कि अजान से पहले मस्जिद में जाए, 2 रकात पढ़े, दुआ करे, जुमा का दिन है, जुमा के दिन जाए, सूर्य कहा पड़े। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे भाई अभी हालांकि कुछ फायदा नहीं हो रहा, लेकिन सुस्ती काहली आ जाती है। इसलिए मेरे दोस्त और भाइयों, आप शैतान को हराइए, शैतान हमारा दुश्मन है ना, और देखिए दुश्मन को हराना हमारा मकसद होता नहीं होता, बताइए। तो शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है, छिपा हुआ तो दुश्मन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि चलो बताते हैं कि दुश्मन से बचना मुश्किल है, नहीं है, बल्कि आसान है दुश्मन से बचना, शैतान से बचना आसान है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे कलिमात, ऐसे अज़कार और दुआ बतलाए हैं, अगर जिसको इंसान पढ़ेगा तो याद रखिए शैतान उस पर काबू नहीं पा सकेगा मेरे दोस्त और भाई। आइए एक और बात पेश करता हूं। देखिए, जब कोई काम बंदे के लिए ज्यादा नफा बख्श होता है, बंदे के लिए ज्यादा नफा बख्श होता है, जो आखिरत में उसके लिए जखीरा हो, और जो उसके लिए जन्नत में जाने का जरिया हो, और जो उसके लिए दुनिया और आखिरत के लिए कामयाबी और कामयाबी का जरिया हो, और अल्लाह के नजदीक ज्यादा पसंदीदा होगा, ज्यादा अच्छा महबूब होगा, तो उसी एतबार से शैतान की मुखालिफत भी उस पर शदीद होगी, और शैतान चाहेगा कि इसको मैं जाने ना दूं। और याद रखिए, सबसे बड़ी इबादत
और सबसे अच्छी इबादत जो अल्लाह को बहुत पसंद है, महबूब कौन सी है? वो है नमाज। और नमाज के दरमियान किस तरीके से एक नमाजी को शैतान बहकाता, इस हदीस में देखते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा नूदिया बिस्सला अदबर अश-शैतान व लहु ज़ुरातुन हत्ता ला यस्मअल अज़ान, कि जब आजान दी जाती है तो शैतान गोज मारते हुए, हवा खारिज करते हुए भाग जाता है। आजान दी जा रही है तो शैतान बहुत जम के भाग जाता है। और इसी वजह से देखिए मुअज्जिन जब आजान देता है तो बड़ी प्यार से आजान देता है, शैतान वहां से भाग जाता है और इतना दूर भागता है जहां तक उसे अजान की आवाज ना सुनी जाए, ना आई उसके पास। फईदा उद्दिल आज़ान व अक़बला, और जब आजान खत्म हो जाती है उसके बाद दोबारा लौट जाता है। फईदा सीबा बिहा अदबरा, फिर जब दोबारा जब इकामत कही जाती है नमाज के लिए, तब भी शैतान पीठ करके भागता है। फईदा उद्दित तस्वीब, और जब इकामत पूरी हो जाती है, अक़बला हत्ता यख्तिरब अल-मर्इ व नफ्सिही, तो शैतान से दोबारा आता है और नमाजी के दिल, नमाज और उसके नमाजी के दिल के दरमियान हाइल हो जाता है। और हाइल होने के बाद यक़ूलु कहता, वसवसा डालता, उज़कुर कदा व कदा, याद करो उस बात को या इस बात को या उस फलां काम को या उस फलां काम को याद करो जो तुमने छोड़ा या तुम्हें करना है। मुस्तक़बिल की बातें याद दिलाएगा, माजी की बातें याद दिलाएगा, घर की बातें याद दिलाएगा, इस तरीके से दोस्त व अहबाब की बातें याद दिलाएगा। दिल में ऐसे वसवसा लाएगा कि नमाज के अंदर इंसान है, जो इंसान भूल जाएगा कि मैंने कितनी रकात पढ़ी है, कितने रकात बाकी रहे, क्या मेरे नमाज के अंदर, क्या मैंने फरादत में जो था अदा किया नहीं किया, ये चीज हमारे अंदर आ जाएगी मेरे दोस्त और भाइयों। उसके बाद हत्ता यदर रजुलु अय यदरी कम सल्ला, उसके बाद एक आदमी को, नमाजी को इस बात का ख्याल नहीं रहेगा कि वो कितनी रकात पढ़ी, 3 पढ़ी या 4 पढ़ी। और इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो फल यस्जुद सजदतैन व हुवा जालिसुन, जब वो बैठ जाके, जब से ख्याल आए 3 या 4 पढ़ो हो, तो उसके बाद तुम क्या करो, सलाम फिरने से पहले, जब बैठा हुआ है नहीं, सलाम फिरने से पहले क्या करो, 2 रकात, 2 सजदे सो करो, 2 सजदे से करेंगे इंशाअल्लाह तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी और शैतान को और तकलीफ हो जाएगी। शैतान और क्या चाहेगा मालूम है कि इब्ने आदम को हुक्म हुआ सजदे का, वो सजदा कर रहा, वो तो अल्लाह के नजदीक होगा, और मुझे सजदे का हुक्म हुआ, रोता हुआ आगे कहेगा मैंने अल्लाह की नाफरमानी की और ता क़यामत मुझे मलऊन करार दिया गया। मेरे दोस्त और भाइयों, तो याद रखिए अगर नमाज में से वसवसे आते हैं, और वसवसे आएंगे, शैतान आता है, और जब वसवसे आए तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि हम जब नमाज पढ़ रहे हैं, वो ख्यालात आ रहे हैं, नमाज में दिमाग नहीं रहता है, जी नहीं लगता है, तो उस वक्त क्या करो, जो एक शैतान आता है वो उसे डाल, जिसका नाम है खिंजिर, खा नून ज़ा, खिंजिर नाम है। तो तुम क्या करो, ताऊस अल्लाह की पनाह मांगो और अपने बाएं तरफ थूको 3 मरतबा। वो क्या करना है, या तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या फिर आऊज़ बिल्लाहि मिन खिंजिर पढ़कर बाएं तरफ इस तरीके से हम 3 मरतबा थूक देंगे। मेरे दोस्त, चाहे आप रुकू की हालत में हो, चाहे आप क़याम की हालत में हो, चाहे सजदा, चाहे तशहुद की हालत में हो, जहां पर भी आपको बुरे वसवसे आ रहे हैं, बुरे ख्यालात आ रहे हैं, नमाज में आपका दिमाग भटक रहा है, नमाज में जी नहीं लग रहा है, तो याद रखिए इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी नमाज सही हो जाएगी और आपकी नमाज की हालत में आपके दिलों में, आपके दिमाग में बुरी वसवसे भी नहीं आएंगे। इसलिए सईदा आयशा ने नमाज की हालत में तवज्जुहात जाने के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुआ इख्तिलासुन, ये शैतान का झपटा मारना है। शैतान का जब नमाज में वसवसे आते हैं, दिमाग भटक जाता है, तो ये शैतान का झपटा मारना होता है। शैतान मिन सलातिल आबदी, जिसे बंदे की नमाज से उड़ा लेता है, सही बुखारी की रिवायत है। तो याद रखिए मेरे दोस्त और भाइयों, अगर हम शैतान से फंबादारी करेंगे, शैतान के करीब हो जाएंगे, लेकिन शैतान से हमें लड़ना है, और अल्लाह ने इतनी हमें ताकत दी, रूह शैतान है मजबूत, शैतान को अल्लाह ने इख्तियार दिए हैं, उसकी जिस्मानी तौर पर ताकतवर है, उसके पास और भी इख्तियार हैं, वो शरीर इख्तियार कर सकता है, वो गायब हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक इंसान को शैतान से कई ज्यादा रूहानी तौर पर बहुत मजबूत बना दिया है। याद रखिए, शैतान से जितना मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है। याद रखिए, जहां अल्लाह का जिक्र होगा, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह में मार है, तो अल्लाह की जहां पनाह होगी वहां शैतान
काबू हम पर नहीं पा सकता मेरे दोस्त और भाइयों। और ऐसी याद रखिए, इतने सब लोग आए, जान लीजिए जो भी सुस्ती काहिली, ये दुनिया में जुआ शराब, इस तरीके से उम्मत में फूट डालना जो है आजकल चल रहा है, जो सियासत उम्मत में आ चुकी है, जो आज गुमराह बड़े बड़े उलमा जो गुमराह हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार शैतान है। क्योंकि शैतान तरह तरह से क्या करता है, गुमराह करता है। अगर किसी जगह पे आगे बताऊंगा हदीस के अंदर, अगर किसी जगह पर शिर्क नहीं हो रहा है, शिर्क से मुराद शैतान की इबादत, शैतान की इबादत से मुराद शिर्क, याद रखिए। शिर्क जो भी होगा वो शैतान की इबादत कहलाई जाएगी। जहां पर शैतान की इबादत नहीं होगी तो शैतान और तरीके से तुम्हें क्या करेगा, गुमराह करके वहां खुश हो जाएगा। आगे हदीस में बताता हूं। नंबर 3, खैर की चीजों का भुलवाना, खैर के कामों का भुलवाना, नेक कामों का, अच्छे कामों को भुलवा देना। देखिए शैतान की बुराइयों में से एक बुराई ये भी है कि जब चीजों में बंदे के लिए खैर है, कोई भी चीज में खैर होता है हमारे लिए, तो उसके भुलवाने पर वो हरीस है, बहुत ज्यादा लालची होता है, बहुत ज्यादा कोशाकू होता है कि मैं क्या करूं, एक इंसान को जब भी वो खैर के काम करना चाहता है मैं उसे बहका दूं, उसे भुला दूं। और ये चीज होती है ना मेरे दोस्त और भाइयों, कभी ऐसी चीजें हो जाते हैं, हम रात में सोना इरादा था फजर में उठने का या किसी को उठाने का, हम भूल जाते हैं, या ऐसा काम होता है हमारे सामने, या ऐसी कोई चीज हो जाती है हम भूल जाते हैं, उठ भी नहीं पाते। एक कोई भी खैर का काम होता है, किसी की मदद करना है, किसी की सदका देना है, इरादा करते हैं, हम अपने लिए पैसे निकालते हैं, 500 रुपए निकाल के जेब में रखे हुए, ये मैं जा रहा है तो मैं रास्ते में किसी को सदका दे दूं, या कोई नेक ऐसा काम करो, तो शैतान क्या करेगा, वहां भुलवा देगा, दिमाग से निकाल देगा ताकि वो खैर का काम ना करे। तो हमें अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की राह में क्या करूंगा, ये खर्च करूंगा, ये नेक काम करना, इंशाअल्लाह आपकी अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह ताला कुरान करीम फरमाता है, इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फअंसाहुम ज़िक्रुल्लाह उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्न हिज़्बश शैतानि हुमुल खासिरून। उन पर शैतान ने गलबा पा लिया, लोगों पर, उनसे मेरा लोगों पर शैतान ने गलबा पा लिया, उसने उन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया है। यही शैतान का गिरोह है, खबरदार बेशक शैतान का गिरोह वही नुकसान उठाने वाला है। याद रखिए शैतान क्या करता है, बुलाता है, अल्लाह के जिक्र को भुला देता है। मेरे दोस्त और भाइयों अब बता दूं यहाँ पर एक बात, शैतान का भुलाना कैसे होता है, हालांकि आगे हदीस में भी आएगा। इतने सब लोग आते हैं, आप देखिए नमाज के आखिर में काफी लोग आएंगे, हर नमाज में लोग आते हैं, सलाम फेरे कोई काम ऐसा आ जाता है, इंसान जो अस्कर पढ़ना चाहिए, अस्कर पढ़ना खैर का काम है, नहीं बोलिए, तस्बीहात पढ़ना कितना बड़ा खैर काम है, आगे बताऊं कितना सवाब उसका ज्यादा है। और मीजान के अंदर जो मीजान क़यामत दिन जो मीजान होगा, इन तस्बीहात का जो ओजन सवाब के लिहाज से जो वजन का जो सवाब होगा वो कितना बड़ा, वो भी आगे बताऊंगा। वो भुला देता, काम है बिजनेस से 2 मिनट बैठूंगा तो ना जाने क्या नुकसान होगा, जाना है और दिल के अंदर ऐसे वसवसे आएगा, सुकून भी नहीं मिलेगा। हालांकि सबसे ज्यादा सुकून आपको मिलेगा तो मस्जिद के अंदर मिलेगा। मेरे दोस्त और भाइयों, हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल और अज़कार में जिन पाबंदियों का तज़किरा फरमाया हम सब के लिए, किसने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनकी बाबत फरमाया, आगे एक जगह फरमाया उनके बाबत कि शैतान आपको भुला ना दे, जैसा कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वक्त कम है से मैं आपके सामने हदीस का तर्जुमा पेश करता हूँ। 2 आदतें ऐसी हैं, आपसे ये हदीस बहुत अच्छी है और इस पर हम अमल करें इंशाअल्लाह। जितने बैठे हैं इस पर अमल होना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी अहम काम क्यों ना हो, हम इस पर अमल करेंगे। कम से कम इतना अमल तो होना चाहिए। आज हम ये इरादा करके जाएंगे। सिर्फ बयान अच्छा करना ये जरूरी नहीं है, अमल जरूरी है। अमल दिलाना, अमल करवाने की उभारना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। मेरे दोस्त और भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 आदतें ऐसी हैं जिनकी ताकत कोई शख्स रख ले वो जन्नत में दाखिल होगा। और वो दोनों जो काम है, दोनों जो अमल है या दोनों जो आदतें हैं वो बहुत आसान है, लेकिन आप सुनो कहते हैं उस पर अमल करने वाले बहुत कम है। क्या क्या है 2 अमल? नंबर 1, 5 वक्त की नमाजें जिनके बाद तुम में से कोई 10 मरतबा सुभान अल्लाह, हालांकि पढ़ना चाहिए, एक हदीस में 10 मरतबा, कम से कम 10 मरतबा हर नमाज के बाद। 5 नमाजें होती हैं, हर नमाज के बाद कितना पढ़ना है? 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर। कहे तो ये जुबान के लिहाज से कितने हो गए? 150 हो गए जुबान के लिहाज से, यानी 30 पंजे 5 नमाजों में कितने हो गए? 150 हो गया ना, 150। और मीजान के एतबार से 1500 हो गए, क्योंकि हर एक अमल का, हर एक तस्बीह का जो सवाब है वो 10 गुना ज्यादा है। 10 है ना, 1 10 के बराबर है। तो कितने हो गए मीजान में? यही जो 150 है ये 1500 के बराबर हो गए।
मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु को अपने हाथ से गिरा लगाते हुए देखा। लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल किस तरह दोनों आसान अमल है। उसके बाद फिर आपने फरमाया दूसरा जो काम है, जब तुम बिस्तर पर जाओ सोने लगो तो उस वक्त 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो। और ये कितने हो गए? 100 हो गए। लेकिन ये गिनती के एतबार से, ये सवाब के एतबार से मीजान में कितने हैं? 1000 के बराबर है, क्योंकि एक जो अमल होता है वो 10 गुना के बराबर है। गोया अगर हम रात में सोते तस्बीह जिसे फातिमा कहा, जैसे क्या कहा जाता है? तस्बीह फातिमा कहा जाता है। अगर हम सोते वक्त रात में पढ़ेंगे तो इसका सवाब कितना होगा? 1000 के नेकियां होंगी। एक नेकी 10 के बराबर है तो 1000 नेकी के बराबर होंगे। और ये दोनों काम बहुत आसान है। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी, जब ये दोनों काम इतने आसान है और लग भी रहे और अमल में बहुत थोड़े हैं और मीजान में सवाब के लिहाज से बहुत ज्यादा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से किसी की सोने की जगह शैतान आता है और जब तुम पढ़ते हो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर तो शैतान तुम्हें सुला देता है और तुम्हारा ये अमल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। शैतान चाहता है तुम अमल ना करो। आज हम गेम खेल रहे हैं तो दो नींद नहीं आ रही, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में ना जाने क्या क्या देख रहे हैं, उसमें बेतवज्जी है, उसमें सुकून नहीं है। हाँ भाई, नींद ना आना ये बेसुकूनी की अलामत है। याद रखिए, नींद आना और नींद मुकम्मल होना ये सुकून की अलामत है या नहीं है? जरा पूछिए, जो नींद नहीं आती है उनकी हालत क्या होती है? जो सुकून से सोते हैं, बेफिक्र होकर जो सोते हैं, वो कितने सुकून वाले होते हैं। तो ऐसे ही जब इंसान पढ़ना तो तस्बीह दुआ वगैरह पढ़ता है, शैतान उसे आके सुलाता खुद होके, ताकि ये अल्लाह का जिक्र ना करे, ये तस्बीह ना पढ़े और क़यामत के दिन इसके पास ज्यादा अज्र और सवाब ना हो, ये शैतान चाहता है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज करने बुरी खैरत लेकर आता है, ताकि नमाज के बाद तुझे तस्बीहात है वो ना पढ़े और उठ चला जाए। और इसमें हम कितने लोग शामिल है देखिए। सलाम फेरे, काम ऐसा आ गया मेरे दोस्त और भाइयों, जो कि इतना छोटा सा अमल बहुत थोड़ा अमल है, सवाब बहुत ज्यादा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये दो अमल ऐसे हैं जिसके अंदर ये आदतें हो, ये अमल करने लगे जो लोग, तो अल्लाह वो आदमी कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसका जो बदला है, दुनिया में तो सुकून मिलेगा, दुनिया में तो फायदा ही फायदा है, लेकिन इसका बदला जो आखिरत में, इसका बदला जो है वो जन्नत है मेरे दोस्त और भाइयों। कितने ऐसे लोग हैं बताइए जो नमाज के बाद कम से कम 10 हालांकि 33 मरतबा पढ़ना है, लेकिन शरीर में 10 का भी जिक्र आया है, कम से कम 10 पढ़कर जाए। सलाम हम फेरते हैं, अल्लाह रहम करे ऐसे नमाजियों के ऊपर, वो बराबर ऐसे नमाजों के लिए, क्योंकि कुरान में कहा गया ना फवैलुल मुसल्लीन, कहा गया नहीं कहा गया, नमाजियों के लिए हलाकत है, बर्बादी है, वैल है, नमाजियों के लिए भी हो सकती है। मतलब ऐसी नमाज जिस नमाज में इत्मीनान ना हो, जिस नमाज में खुशी और खुशू ना हो, जिस नमाज में जो नमाज पढ़े रियाकारी के लिए पढ़ा है ताकि मुझे लोग मुसलमान कहे, सलाम कहे, तो लोग ऐसे भागते हैं अल्लाह रहम करे जैसे कि इन्हें मस्जिद में इन्हें कोई हम ऐसी मुश्किलात में थे, अभी जहां से हम आजाद हो गए हैं। मेरे दोस्त और भाइयों, हमें कोई काम, हमें कहीं जाना होता है, हम आधा घंटा पहले पहुंचना चाहते हैं, दूर जो रोज काम के लिए जाते हैं हम, लेकिन क्या मस्जिद में नमाज सलाम फिरने के बाद 2-4 मिनट बैठकर अल्लाह का जिक्र करेंगे? मेरे दोस्त और भाइयों, याद रखिए अल्लाह का जो जिक्र है वो दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान लो, खबरदार हो जाओ, यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। दिलों की इत्मीनान अगर हमें चाहिए, आज दिल हमारे बेसुकून है, कितने ऐसे लोग हैं, कोई कैसा हमारा आलम है, लोग भागते दौड़ते फिर रहे मेरे दोस्त और भाइयों, इसलिए अल्लाह का जिक्र कीजिए मेरे दोस्त और भाई। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4, कंजूसी और बखीली। शैतान क्या करता है, जहां पर बंदा अल्लाह के राह में खर्च करता है ना, तो शैतान उसे बुख्ल से डराता है, फक्र और फाक़े से डराता है। और जबकि कोई इंसान बुराई के कामों में खर्च करता है तो शैतान उसे डराता नहीं बल्कि और हिम्मत दिलाता है। जाइए हमारे मुसलमानों के, अगर देखना है, गरीबी देखना है, मुसलमानों के कंजूसी बखीली देखना, देखिए मस्जिदों में खैर कामों में देखिए 10 रुपए निकले, बहुत बड़ी बात है। और अगर मुसलमानों की अमीरी देखना है और मुसलमानों की जो खराबियां देखना, जाइए निकाह में, शादियों में, जाइए वलीमों के अंदर, ऐसे चीज इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं, लड़की को जहेज में वो दिया जा रहा है जो लड़की कभी इस्तेमाल नहीं करेगी तो जिंदगी में। ऐसे सामान दिया जाता है जो सामान को लड़की एक बार रख दिया बंद करके जिंदगी में दोबारा खोलने की नौबत भी नहीं आएगी। और ऐसे कपड़ों पर पैसा खर्च किया जा रहा है जिसके 4 घंटे पहनने के बाद जिंदगी में दोबारा से नहीं पहना जाएगा। ये हकीकत है, ये हकीकत है। और जब बारी आती है अल्लाह के राह में खर्च करने की,
किसी मिस्किन की मदद करने की, अल्लाह के राह में खर्च करने की शैतान डराता, अरे मत खर्च कर, मत खर्च कर, पैसे खत्म हो जाएंगे, माल कम हो जाएगा। ये हमारा हाल है मेरे दोस्त और भाइयों। बुराई काम जहां आते हैं वहां बहुत हम खर्च करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अश-शैतान यअिदुकुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें फकीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है। देखिए और कीजिए कुरान की आयत में शैतान क्या करता है, तुम्हें बखीली से डराता है, तुम्हें फक्र और फाक़ा से डराता है। अल्लाह के राह में खर्च करोगे तो तुम्हारे पास का माल खत्म हो जाएगा। व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है, यानी बुराइयों के काम करने का हुक्म देता है। बुराइयां जहां तुम्हें करना है वहां खर्च कीजिए। मेरे दोस्त और भाइयों, एक बात है, नौजवानों की बात है, वो नौजवान जब माँ बाप पर खर्च करने की बात आती है थोड़ा रुक जाते हैं, जबकि माँ बाप पर खर्च करना ये बहुत बड़ी सादतमंदी है। लेकिन आज हम देखते हैं जिनाकारी आम हो रही है। हकीकत है, बताना जरूरी है, जिनाकारी के एक बंदा जो माँ बाप मोहताज उन पे खर्च नहीं कर रहा, लेकिन जिनाकारी के लिए, जिनाकारी के लिए रास्ते ढूंढने के लिए वहां पर खर्च करता है, हजारों से खर्च किए जाते हैं। ये हकीकत है। जाइए बड़े शहरों के अंदर मेरे दोस्त और भाई, आगे अल्लाह कहता है वल्लाहु यअिदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और अल्लाह ताला वादा करता है तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का, वो फज़ला, और अपने फज़ल का, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला क्या है, इल्म जानने वाला, उसात वाला है। और याद रखिए अल्लाह ताला देखिए क्या कर रहा है, मग़फ़िरत का वादा कर रहा है, शैतान वादा कर रहा है फ़क़्र और फ़ाक़े का, और तुम्हें हुक्म दे रहा बुराइयों का। और अल्लाह ताला का ये वादा फज़ल का भी है, मग़फ़िरत का। जहां फज़ल से मुराद जितना तुम अल्लाह के राह में खर्च करोगे, जितना तुम सही होगे अल्लाह के राह में, अल्लाह तुम्हें उतना और अता करेगा। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे रास्ते हमवार करेगा कि तुम गुमान भी नहीं कर सकते। और शैतान हमेशा डराएगा, अरे इतना खर्च करेंगे तो क्या होगा। मेरे दोस्त और भाई थोड़ा सोचिए, चाहे शादी किसकी क्यों ना हो, बुराई, शादी करना अच्छी बात है, लेकिन शादी के अंदर जो खुराफात, बिदात और जो नकीर, जो मुनकर जो काम होते हैं, वो काम किसके हैं, शैतान के काम है। लिखते हैं निकाह मिन सुन्नत, कार्ड छपा जा रहा है। कार्ड, मैं तो बोलता हूँ निकाह में कार्ड भी छपाने की जरूरत नहीं है, जुबान के जरिए दावत दीजिए, ताकि ठीक है कार्ड छपा रहे हैं हल्का सा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कार्ड छपाने में, हालांकि कार्ड फाड़ने फेंकने काम होता है, कुछ काम नहीं आता, 100 रुपए कार्ड छपा रहे हैं, जो कि 5, 6, 7, 8 रुपए में छपने वाला है, उसके अंदर 100, 200 रुपए, क्या दिखाने के लिए, भाई खाने काम है या पहनने काम का है, वो कुछ काम करे ना, तो कोई रखेगा, शादी हो गई फाड़ के फेंक देंगे, ना जानो किसमें वो चंद कुछ भी काम के लिए नहीं आएगा, जलाने के काम में आ जाएगा। मेरे दोस्त और भाइयों, बुराई कामों से बचो। वही अगर 100 रुपए जो हम खर्च कर रहे हैं कार्ड के अंदर, हम कम करते हुए क्या करना चाहिए, अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए। किसी वही पैसों से अगर हम अल्लाह के राह में किसी मिस्किन की, किसी गरीब की मदद करें, किसी बेवा की मदद करेंगे, तो यार उसका अजर सवाब, वो नेकियां बाकी रहने वाली हैं, और कहां काम आएंगी, दुनिया में तो काम आएंगी और आखिरत में भी काम आएंगी मेरे दोस्त और भाई। खैर, तो शैतान जो है मोहताजगी से डराता है, शैतान माल की कम होने से डराता है, और अल्लाह ताला मग़फ़िरत का वादा करता है, और अल्लाह कहता है जितना तुम अल्लाह के राह में खर्च करोगे अल्लाह उतना देगा। देखिए कुरान की आयत देखिए, मन दल्लज़ी यक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ु लहू अज़ाफ़न कसीरा, जो शख्स अल्लाह को कर्ज़ हसना देगा, अल्लाह को कर्ज़ हसना देता है मतलब अल्लाह के राह में खर्च करना, अल्लाह को भी देने रहा डायरेक्ट, बल्कि अल्लाह के राह में, चाहे जिहाद हो, मस्जिद हो, अल्लाह का घर हो, या मिस्किन या बेवा वगैरह यतीम हो, जो भी अल्लाह के राह में खर्च कर रहे हैं मेरे दोस्त और भाइयों, ये क्या अल्लाह क्या करे उसके बदले में, अल्लाह ताला बड़ा चला कर, यानी कई बार 10-12 गुना बड़ा चढ़कर अल्लाह ताला, बल्कि एक कुरान की आयत में 700 गुना तक बड़ा चढ़कर अल्लाह ताला अता कर देते हैं। और ये सही बात है, जो लोग अल्लाह के राह में खर्च करते हैं ना, उनके पास माल आता है, और जो इधर खर्च करते हैं परेशान है। कुछ लोग हराम की कमाई करके, बेहाई का काम करके कितना भी कमा लेंगे परेशान है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते नहीं अल्लाह के राह में खर्च करने के लिए, फौरन हाथ जो भी आए दे देते हैं और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं और एक सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे दोस्त और भाई। अल्लाह कहता है वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़्लिफ़ुहु खैरुर राज़िक़ीन, और तुम जो कुछ भी अल्लाह के राह में खर्च करोगे तो अल्लाह उसका पूरा बदला देगा, वो सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। चलिए आगे चलते। नंबर 5, नवमौलूद बच्चे की खोक में कछुए लगाना। मेरे दोस्त और भाई, शैतान कितना बड़ा दुश्मन देखिए। जब कोई बच्चा अपने मां की पेट से बाहर से गोद में दुनिया में आ जाता है, तो शैतान सबसे पहली दुश्मनी है ना, उस दुश्मनी है आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी को याद अपने सामने रखते हुए बुग़्ज़ और हसद के साथ आता है, और उस बच्चे को देखकर जलता है, जलन और हसद के साथ दुश्मनी निभाने के लिए, और उस बच्चे को खबरदार करने के लिए कि मैं तेरा बड़ा दुश्मन हूं, और उस बच्चे के खिलाफ
जंग का ऐलान करने के लिए उस बच्चे कछुए लगाता है, ऐसा टोचता है उंगली से अपने, क्या कछुआ लगाता है मेरे दोस्त और भाइयों, कछुआ का लगाता है। जैसा कि हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला शैतानु यमस्सु हीना यूलदु फयस्तहिल्लु सारिखन मिन मस्स शैतान इय्याहु इल्ला मरियम व बनाहा। तर्जुमा इस हदीस का ये है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसको कचौका लगाता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है। और शैतान ने जो कचौका नहीं लगा पाया वो मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को लगा नहीं पाया। उनके अलावा जितने भी बच्चे आए तमाम को कचौका लगाते। कचौका लगाने का मकसद कुछ भलाई का नहीं होता बल्कि अपनी दुश्मनी का इजहार करना होता है। याद रखो मेरे दोस्त और भाइयों, जो शैतान हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा, उन्हें बहकाया, उनका दुश्मन और उनकी वजह से दुश्मनी अभी निभा रहा है, हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? और बच्चा जब पैदा हो, जब भी दुश्मनी को निभाते हुए, दुश्मनी का ऐलान, जंग का ऐलान करते हुए बच्चे कचौका लगाता ताकि बच्चा रोए, जान ले मेरे बारे में कि मैं उसका दुश्मन हूं और मैं उसके खिलाफ जंग करने वाला हूं। और फिर हम उसको खुश कर रहे हैं मेरे दोस्त और भाइयों। शैतान को नाराज करना है, शैतान को तकलीफ देना है। कैसे तकलीफ देंगे? अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करते हुए, अपने नफ्स को अल्लाह के सामने झुकाकर, अपने नफ्स को इताअत और फरमाबरदारी में लाकर हम शैतान से दुश्मनी निभा सकते हैं। और अगर हम नाफरमानी करेंगे तो हम शैतान के दोस्त हैं, दुश्मन कभी नहीं हो सकते हैं। और नंबर 6, खौफनाक ख्वाब दिखाना, बुरा ख्वाब दिखाना। शैतान, देखिए, शैतान की बुराई में से एक बुराई ये भी है कि वो इंसान को, खास तौर पर मोमिन को, रंज और गम में मुब्तला करने की गरज से भयानक ख्वाब दिखाता है। जब इंसान सोता है बुरा ख्वाब दिखा रहा है, ख्वाब के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, इंसान डर के हैबत से उठ जाता है और उठने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है। आप देखेंगे कभी कोई ऐसा बुरा ख्वाब देखते हैं, जब उठ जाते हैं तो आपके अंदर हैबत आ जाती है, आप डर जाते, कुछ वक्त के लिए आप सकते में हो जाते हैं। तो ये शैतान की तरफ से होता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन रुया सलासुन, ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। उसमें से बादशाह की तरफ से होल्ला ख्वाब होता है, डरावना ख्वाब होता है, जिसकी वजह से इंसान परेशान हो जाता है। दूसरा वो ख्वाब होता है जो इंसान जागने की हालत में जो कुछ सोचता है, गौर फिक्र करता है, जो कुछ वो ख्वाब जागने में देखता है वही सोने में देखता है। तीसरा ख्वाब नबुवत का 46 हिस्सा है, नबी के जो ख्वाब होते हैं वो वही के मानिंद होते हैं, वो सच्चे होते हैं। और एक हदीस में है, एक ख्वाब वो होता है जो अल्लाह की तरफ से होता है, जो बहुत अच्छा होता है, और एक ख्वाब जो बुरा होता है। कोई भी ख्वाब, ऐसा ख्वाब, कोई मर गए, वो हमारे ख्वाब में आ रहे हैं, हालांकि शैतान उनके ख्वाब में आता है और हमें कोई ऐसी बात उनकी तरफ से पेश आती है, हम डर कर उठ जाते हैं, हैबत में आ जाते हैं। या कभी कोई से जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में तो नहीं आ सकता है, लेकिन ये कोई निरान शक्ल इख्तियार करके कहता कि मैं नौज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं और तुम्हें बहकाने के लिए आता। और ये देखिए, आप गुमराह फिरकों के अंदर या जो गुमराह लोग हैं, अक्सर जिनके अंदर सूफियत के अक़ायद पाए जाते हैं, उनको ये ख्वाब दिखे जाते हैं। जबकि याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, शैतान मेरे ख्वाब में नहीं आ सकता, मेरे सूरत में तुम्हारे ख्वाब में नहीं आ सकता। हाँ, अलबत्ता किसी और कोई भी नुरानी शक्ल इख्तियार करे कह सकता है कि मैं नबी हूं। हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखे, सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। तो याद रखिए, वो उनके यहाँ तो जो भी उनके ख्वाब में नबी आए हैं तो वाकई नबी आए हैं उस सूरत में। क्यों शैतान अगर आता, शैतान नहीं आ सकता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें, अगर आता है वो कोई और शय इख्तियार करके आ सकता है और सहाबा को वो धोखा नहीं दे सकता मेरे दोस्त और भाइयों। चलिए आगे चलते हैं। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने ख्वाब देखा, मेरा सर कटा हुआ है, ख्वाब के अंदर मेरा सर क्या कटा हुआ है। तो आप सल्लम सुनकर ये हंस पड़े, थोड़ा सा बात पर ये सुनकर हंस पड़े और कहने लगे, इदा लगा शैतानु बिअहदिकुम फी मनामी फला युहद्दिस बिहिन नास, जब तुम में से किसी के साथ ख्वाब की हालत में शैतान खिलवाड़ करे तो उसे चाहिए कि उस ख्वाब को किसी को बयान ना करे। सही मुस्लिम की रिवायत है। यानी कोई भी ख्वाब, ये क्या था, साहब रसूल ने क्या कहा, मैंने अपना सर कटा हुआ देखा, तो आपने हंसते हुए कहा कि जब भी तुम ख्वाब देखो शैतान तुमसे खिलवाड़ कर रहा है। मतलब ये है, जब तुम बुरा ख्वाब देखते हो, ख्वाब में क्या होता है, कोई हमको मार रहा है, ख्वाब में हम आग के अंदर है, ख्वाब में हम कोई गहरा में गिर रहे हैं, ख्वाब में ऐसे कोई बुरा ऐसे चीजें आते हैं, याद रखिए शैतान तरफ से आते हैं। उठ जाए, डर उठ जाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, पढ़ो वक़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और उसके बाद सो जाओ, करवट बदल के अपनी हैयत बदल के सो जाओ। ऐसे मेरे दोस्त और भाई, नंबर 7, सर पर गिरा लगाना। जब हम लोग सोते ना रात के अंदर तो शैतान क्या करता है, हमारे सर पर 3 गिरे लगाता है। हदीस इस तरीके से है कि या शैतान
کہ جب کوئی آدمی رات کو سوتا ہے رات میں تو شیطان اس کے سر میں 3 گرے لگاتا ہے، گرے باندھتا ہے اس طریقے سے تاکہ وہ اللہ کی عبادت نہ کرے اور وہ سوتے رہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب وہ اٹھتا ہے جاگتا ہے، جاگے برابر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی دعا پڑھتا ہے۔ ہم دعا کیا پڑھتے ہیں اٹھنے برابر؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور دعا ہے، کیا ہے دعا پڑھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد پڑھنا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ اگر یہ دعا پڑھ کے ہم کوئی دعا کریں انشاءاللہ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے جب کوئی انسان جاگتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے، میں نے ابھی جو بتا ذکر اللہ سے مراد اللہ کے حمد و ثنا، کوئی بھی کلمہ پڑھیے دعا پڑھیے یہ اللہ کا ذکر ہے، تو ایک گرے کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آگے اٹھتا ہے، سوتا نہیں، دوبارہ اٹھ جاتا ہے، اٹھ کر وضو کرتا اچھی طریقے سے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وضو کرنے کے بعد وہ نفل یا فرض جو بھی نماز ہوتی ہے وہ نماز ادا کرتا ہے، تینوں گرے کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، شیطان کی تینوں گرے سے بنے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا ہے، بے نماز اگر اٹھ جاتا ہے تو وہ سست اور بد باطن رہتا ہے، برے باطن کے ساتھ اس کا جو اندر کا جو باطن ہے وہ برا رہتا ہے، اچھا نہیں رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ تینوں عمل کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرے کھل گئی۔ اور حدیث بتا جیسے گرے کھلتی ہے نا ایسے کھلتے جاتی ہے، اٹھا اللہ کا ذکر کیا تو پہلی گرہ کھل گئی، وضو کیا دوسری گرہ کھل گئی، اور اس کے بعد جب نماز پڑھا تینوں گرہ کھل چکے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ انسان کا اندر کا جو باطن ہے، جو باطن ہوتا ہے وہ بھی صاف پاک و صاف اور چاق و چوبند، وہ انسان خوش مزاج رہے گا۔ لیکن وہی انسان جو بے نمازی، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ نماز پڑھا، نہ وضو کیا، تینوں گرہ سے بندے میں اٹھے گا، اس کا باطن میں گندا برا باطن رہے گا اور وہ چاق و چوبند میں نہیں رہے گا میرے دوست اور بھائی۔ اور ایسے نمبر 8 چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنا۔ آج مسلمانوں کا یہ معاملہ ہو چکا ہے، عقیدہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ گناہ کو معمولی نہیں سمجھتے ہیں۔ وقت ہو رہا اس لیے میں صرف حدیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ شیطان دیکھیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، کس بات سے مایوس ہو چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں کبھی اس کی پوجا کی جائے، یعنی مکہ مدینے کے اندر اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، یا جہاں پر بھی مراد اس سے کہ وہ جو موحد ہیں، جو توحید والے ہیں، وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ شیطان کی عبادت کریں، یعنی کہ شیطان کی عبادت شرک کبھی نہیں کریں گے، وہ موحد ہیں۔ لیکن بعض ایسے کاموں میں اس کی اطاعت ہوتی رہے گی جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو اور وہ اس پر راضی ہو جائے گا، اس پر خوش ہو جائے گا۔ روایت سنن ابن ماجہ کی روایت۔ میرے دوست بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے زندگی میں کتنی مرتبہ ایسے کام ہوتے ہیں، ایسے گناہ ہوتے ہیں، ہم انہیں حقیر سمجھ کرتے سمجھتے کوئی بات نہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے سنت یا کچھ ایسے ہوتے ہم انہیں معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ معمولی جو کام ہم سمجھ رہے ہیں، جو نیکی کی جو کام ہے وہ معمولی نہیں، وہ بہت بڑے کام ہے، اور یہی جنت میں لے جانے کے لیے ہمارے لیے ایک ذریعہ بنیں گے، یہی قیامت کے دن میزان میں ہمارے لیے کام میں آئے جائیں گے میرے دوست اور بھائی۔ اور جنہیں ہم چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ رہے ہیں نا، اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، معمولی گناہ، کیے تو کیا ہوا، یہ کھائے تو کیا ہوا، وہ کیے تو کیا ہوا، یہاں گئے تو کیا ہوا، یاد رکھیے یہی حاقل جو گناہ ہم سمجھ رہے ہیں یہی پہاڑ بن سکتے ہیں، گناہوں کے پہاڑ بن سکتے ہیں، اور ہمیں جنت سے دور اور جہنم میں نزدیک لا سکتے ہیں میرے دوست اور بھائیوں۔ ایسے ہی نمبر 9 مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا۔ مختصر بیان کر رہا ہوں، یاد رکھیے شیطان کے ہتھیاروں میں سب سے بڑا ہتھیار ہی مسلمانوں کے درمیان فساد ڈالنا ہے، پھوٹ ڈالنا ہے، فتنہ پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کے اندر کی محبت کو ختم کرنا ہے، ایک دوسرے کے اندر جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرے عرب میں مسلمان شیطان کی عبادت کرے اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن مگر کہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف پرانگیختہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑانے کے لیے۔ اب دیکھیں مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، ایک مسلمان مسلک کا دوسرے مسلمان مسلک کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تک کیا سلام بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آج یہ چیز ہے نہیں میرے دوست اور بھائیوں، اور ایسی شیطان کا یہ پھوٹ ڈالنا عام لوگوں کی نسبت میاں اور بیوی میں زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے اگر وہ دونوں شوہر کے درمیان جدائی کرے گا، طلاق کی نوبت لے کر آئے گا، طلاق ہو جائے گا، تو اس سے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، زناکاریاں عام ہو جاتے ہیں، بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے میرے دوست اور بھائیوں، سب سے اہم کام جو شیطان کے ہاں پر ہے نا، بہت سارے کام اس کے پاس ہے، مسلمان میں پھوٹ ڈالنا، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن ان تمام کام میں سب سے جو اہم کام ہے وہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنا ہے۔ جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت
पानी पर बिछाता है, फिर वो अपने लश्कर रवाना करता है ताकि वो लोगों को बहकाए, लोगों के दरमियान फूट डाले, हाँ, लोगों के दरमियान झगड़ा लगाए, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोके। चुनाचे उसके चेले जो होते हैं सब निकल जाते हैं, उसकी लश्कर निकल जाती है। और सबसे अच्छा बड़ा काम जो करके आता है ना, वो शैतान इब्लीस से खुश होकर उसे अपने पास बिठाता है। जब उसका लश्कर वापस आता है, लश्कर से पूछता है तुमने क्या क्या काम किया, फला फला, एक एक शैतान एक एक चला बताता, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। सबसे कहता तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया, दूर हो जाओ। लेकिन एक शैतान, एक चेला ऐसा था, कहता है कि मैं एक आदमी के पीछे पड़ा, एक घर के पीछे पड़ा, एक आदमी के पीछे में पड़ा, और उसका पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि मैं उसके और उसके बीवी के दरमियान झगड़ा लगाया, और यहां तक नौबत पहुंची कि उनके दरमियान फूट डाली, तलाक तक बात पहुंच गई। उसके बाद शैतान खुश होता है, उसे अपने गले लगाकर कहता है तुमने सबसे बड़ा काम किया, और उसे अपने पास बिठाता है मेरे दोस्त और भाइयों, और कहता है कि तो अपने करीब पर कहता है तुम सबसे बेहतर हो, कहता तुम सब जो हमारे जो लश्कर है इतना जो चेलों का ये इनमें सबसे बेहतर तुमने काम किया, तुम सबसे बेहतर हो। सही मुस्लिम की रिवायत। इसलिए याद रखिए तलाक और खुला होना, याद रखिए शैतान के ये हथियारों में है। शोर भी दरमियान झगड़ा डालना, इसलिए जब भी घर में दाखिल हो दुआ पढ़ के दाखिल हो जाओ, दुआ पढ़ो सलाम करते हुए, कितना भी गुस्से में क्यों ना हो। कभी ऐसा होता शैतान क्या करता है, अपनी बीवी के चेहरे पर बस शक्ल लेकर आता है अगर दुआ पढ़ के नहीं जाओगे, और आपको गुस्सा आ जाता है। इसलिए घर में जाओ, दुआ पढ़ते हुए जाओ, सलाम करते हुए जाओ, घर से निकलो दुआ पढ़ते हुए सलाम करते हुए निकलो। ऐसे मेरे दोस्त और भाइयों, नंबर 10 गुनाहों को मुज़य्यन करना। गुनाह दिखने में बहुत बुरे हैं, सोचने में, लेकिन जब इंसान करता है ना उसे बहुत अच्छे लगते हैं, मजा आता है गुनाह करने के अंदर, चाहे वो खराफात की शक्ल में हो, बिदात की शक्ल में हो, या जो हम करते हैं जो गुनाह दिखते हैं, जो बुराई जो दिखती है उसकी शक्ल में हो। शैतान क्या करता है, उन्हें बहुत अच्छा बताता है, बहुत अच्छा दिखाता है। जैसा कि मेरे दोस्त और भाइयों अल्लाह ताला ने फरमाया, तल्लाही कसम खा कहा, अल्लाह की कसम हमने तुमसे पहले बहुत सारे रसूल भेजे तो उम्मतों के अंदर, लेकिन शैतान ने उन उम्मतों को गुमराह कैसे किया, उनके बुरे अमाल को उनकी नजर में मुज़य्यन अच्छा ज़िन्नतदार बना के उन्हें क्या किया, उन्हें गुमराह किया, बर्बाद किया। समूद के बारे में कौम समूद ने कहा हमने कौम समूद को बर्बाद किया, उन्हें तबाह किया, उन्हें सजा दी। क्यों इसलिए कि उन्होंने गुमराह, वो समझदार थे। शैतान ने उनके बुरे कामों को नेक बना के पेश किया, जिसकी वजह से वो हालांकि बर्बाद हो गए, और उन्हें ये हालांकि समझदार थे, वो जानते थे। और ऐसी बता दूं एक बात, देखिए शैतान क्या करता हूँ, हमारे अब देखिए शिर्क किया जा रहा है मज़ारों में, कितना अच्छा काम लग रहा है, नमाज पढ़ना उनके यहाँ पे उतना अच्छा काम नहीं लगता है जितना अच्छा काम उनके यहाँ पे मज़ारों पे जाना लगता है। चाहिए गैरों में, चाहे चर्च हो, चाहे गैरों में हो, चाहे मुसलमानों के अंदर हो। यही मिसाल बताता हूं मैं आपको, आखिरी बात बता के बात को खत्म कर रहा हूं मेरे दोस्त और भाइयों। आप जानते हैं कौम सबा के बारे में, बिलकिस के बारे में। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब हुदहुद एक परिंदा था वो गायब हो गया, कहा कि कहां गया वो परिंदा, जब आएगा तो मुझसे ज़िबा करूंगा। चुनांचे जब परिंदा ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं ऐसी चीज को जानता, ऐसे कौम को जानता, तुम नहीं जानते हो, मैंने ऐसे कौम को पाया, वजदतुहा कौमहा यसजुदूना, मैंने ऐसी बादशाह और उसके कौम को पाया जो अल्लाह को छोड़कर सूरज की आग की इबादत करते हैं मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। और उसने क्या कहा, हुदहुद परिंदा की तौहीद कैसी होती है, किसने कहा, वो अज़लहुम शैतान अमालहुम, और शैतान ने उनके इस अमल को उनकी नजर में बहुत मुज़य्यन खूबसूरत बना दिया है। ये जो अल्लाह को छोड़ के जो सूरज की पूजा करना है, ये कौन कह रहा है मालूम है, ये हुदहुद परिंदा कह रहा है। कहता आगे फसद्दहुम अनिस सबीली, और शैतान ने जिसकी वजह से वो अल्लाह के रास्ते से रुक गए, शैतान ने उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोका, फहुम ला यहतदून, शायद वो हिदायत ना पाए। किसके बारे में करा, बिलकिस और उसके कौम के बारे में। जब देखा कि बिलकिस उसकी कौम कैसी है, जो सूरज की परस्तिश करती है, अल्लाह को भूली हुई है, अल्लाह को नहीं जानती है, तो उसने ये बात कही। उसके बाद का वाकया है कि उसके बाद जब उसके पास भेजा गया, और भेजने के बाद वो खत वगैरह भेजा गया, और उसके बाद जब उसे समझाया गया, उसके बाद जब आई तो ईमान लाई, सल्लल्लाहु के हाथों पर अल्लाह पर ईमान लाई। उसका एक लंबा वाकया है, उसमें ना जाते हुए आखिरी बात, शराब और जुआ मेरे दोस्त और भाइयों, शराब और जुआ जो है ना, ये सब शैतानी काम है। खुद अल्लाह ने कहा या ये जो है ना शराब जुआ, जान लो यकीन शराब जुआ, ये फाल निकालना, ये तीर के जरिए ये फाल निकालना, ये सब क्या है, शैतानी काम है। आगे अल्लाह ने फरमाया इसी आयत का दूसरी आयत में, शैतान इन कामों के जरिए तुम्हारे दरमियान अदावत, दुश्मनी और बुग़्ज़ डालना चाहता है, तुम्हारे दरमियान फूट डालना चाहता है मेरे दोस्त और भाइयों, ये बात फरमाई। और याद रखिए जुआ के जरिए कितनी फूट आती है, शराब के जरिए आज जो हम खेलते हैं जुआ वगैरह, जो लोग खेलते हैं, बुग़्ज़ पैदा होता है, मुसलमान दरमियान कितनी सारी दुश्मनी पैदा होती है। बस आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को शैतान के हरबों से बचाए।
شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچائیں، شیطان کے ہتھیار سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک و صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان صحیح ایمان کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام میں زندہ رکھ، شیطان کی ہتھ کنڈوں سے ہمیں بچانا، جب ہمیں موت دے تو ایمان بالخیر کے ذریعے ہمیں موت عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین ونفعنا واياكم بالآيات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک بر رب حلیم۔